شہر قائد کے ترقیاتی منصوبے بیماریوں کی وجہ بننے لگے۔ دھول، مٹی اور آلودگی کے باعث فضا کا معیار خراب ہونے لگا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں کراچی دوسرے نمبر پر آ گیا۔ مزید بتائیں گے فرحان خان۔ جی بالکل، شہر قائد میں آلودگی کا راز برقرار ہے۔ آج بھی شہر قائد آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ اگر وجہ کی بات کریں تو جو ہے وہ میں سبزی منڈی کے قریب موجود ہوں۔ یہاں پہ بھی میرے کیمرہ مین رانا اگر آپ کو دکھائیں تو یہ ایک ترقیاتی منصوبہ چل رہا ہے جو کہ مزار قائد سے آگے یونیورسٹی روڈ کی طرف جاتا ہے۔ 26 کلومیٹر طویل یہ منصوبہ ہے۔ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ ایک شہری صابر موجود ہے، ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے صحت کے لیے خراب ہے۔ ابھی ہم یہاں سے بائکوں پہ جاتے ہیں، ہماری آنکھوں میں مٹی اڑ رہی ہے۔ تقریباً کچھ نہیں 6 مہینے ہوگا روڈ کھدا ہوا ہے۔ صحیح، اب رات کا ٹائم ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی آ رہا ہے، دیکھو جگہ جگہ پہ دیکھو ان لوگوں نے گڈھے کھودے ہیں۔ صحیح ہے، کوئی گڈھوں میں جا رہا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں مٹی ہے، سامنے گاڑی کو نظر تھوڑی آتا ہے۔ بس ان لوگوں نے کر کے چھوڑا ہوا ہے، بس ہو رہا ہے۔ بیماریوں کی وجہ بن رہی ہے۔ درخت پودے ہی نہیں ہوئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کھانسی نزلہ بیماری کا ایسی سے تو کیا کہتے ہیں وہ سارا ہوگا پھر۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ یہ شہری موجود تھے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ درخت اور پیڑ پودے جو ہیں وہ بیماریوں کو کم کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہوا میں آلودگی کے ذرات بڑھ رہے ہیں۔ شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اتنے لمبے طویل پروجیکٹ کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بنایا جاتا ہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، جس کی باعث جو ہے گرین بیلٹ مکمل ختم نہیں ہوتی۔ جی شہر قائد میں ہوا کا معیار انتہائی خراب ہو گیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ ڈاکٹر مسعود شاہد نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید بتائیں گی صبا پرویز۔ بالکل، شہر قائد میں موسم سرما کے آغاز سے ہی جو ہے وہ شہر میں آلودگی کے ذرات پھیلنا شروع ہو گئے۔ اس وقت کا جو آلودہ ذرات ہیں وہ 231 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مسعود شاہد صاحب موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کہ اس موسم میں جو ہے وہ کیا احتیاطی تدابیر شہریوں کو لینی چاہیے، اور تھوڑی سی اس موسم کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے موسم کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جب بھی سردی سے گرمی آتی ہے، موسم چینج ہوتا ہے، گرمی سے سردی آتی ہے تو یہ بیمار ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ مطلب کہاوتیں ہوتی ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں۔ سمندر کے کنارے رہنے والے جتنے بھی شہر ہیں دنیا میں، وہاں ہوا میں نمی بہت ہوتی ہے، اور ہوا میں نمی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ الرجنس جو ہے، جو نزلہ زکام کھانسی بخار کے جراثیم ہے، وہ ایک 5 فٹ 2 انچ کے آدمی کے چیسٹ ہائٹ پہ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ کی جو عادتیں ہیں وہ کافی ڈفرینٹ ہیں، خراب ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ بہت زیادہ لگاتے ہیں۔ تو اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ابھی ہاتھ ہم نے کان میں لگایا، تھوڑی دیر بعد وہ منہ میں ڈالا، اور پھر کان میں ڈالا، پھر ناک میں ڈالا، تو الرجنس بڑی آرام سے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر میں جہاں تک بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ لوگ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا وہ لوگ جو گاڑی وغیرہ چلا رہے ہیں، شیشہ بند کر کے ایک شیشہ کھول کے ان کو ماسک لگانا بہت ضروری ہے۔ ماسک لگائیں، ٹھنڈے پانی کا استعمال کم کریں، اور ٹھنڈے مشروبات ان کی بھی بہت پرہیز کریں، خاص کر کے کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں اس کی بہت پرہیز کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی زندگی کو پازیٹیو وے میں لے کر آئیں۔ پانی زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں، گھر کا کھانا استعمال کریں، کھلی ہوئی اشیاء جو ہے وہ بازار میں جو مل رہی ہوتی ہے اس کو کھانے پینے میں احتیاط کریں، اور اپنے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ غیر ضروری طور پہ اگر باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلیں تو دیکھیں آپ یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کتنی فضا میں آلودگی ہے۔ ایسٹمیٹک پیشنٹ جو ہیں وہ ماسک بہت ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ دواؤں کا استعمال، تیز والی اینٹی الرجی دوائیں استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ نزلے کو بہت جلدی گاڑھا کرتی ہیں۔ جب نزلہ جلدی گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً سر میں درد اور وہ گلے میں تکلیف اور یہ اور وہ شکایتیں بہت شروع ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل، زیادہ سے زیادہ ماسک استعمال کریں، اور غیر ضروری جو ہے وہ گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوسری جانب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا تھا کہ وہ لوگ جو الرجک ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پر اپنے چہرے سے ہاتھوں کو دور رکھیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ ماسک کا زیادہ استعمال کریں۔ کراچی کے کئی علاقوں میں صاف پانی کی عدم فراہمی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لیاقت آباد ایف سی ایریا میں بھی صاف پانی کی لائن میں سیوریج کا پانی شامل ہونے لگا ہے۔ مزید بتائیں گی آئمہ خان۔ شہر
कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है वो बढ़ने लगा है। बिजली, पानी, गैस जो है वो शहर में नायाब हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद FC एरिया में। यहाँ पे जो है वो हफ्ते में एक दिन पानी आता है और साथ ही साथ जो है वो उस पानी में भी जो है वो सेवरेज का पानी मिला होता है, चूँकि सेवरेज की लाइन के साथ ही जो है वो पानी की लाइन है और जो कि टूटी हुई है, जिसके बायस जो है वो इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद हैं। सर बताइएगा कितने दिनों में पानी आता है आपके घर में, और ये भी बताइएगा जब पानी नहीं आता तो किस तरह से गुजारा करते हैं? मैडम, जब पानी नहीं आता है तो हम कभी मस्जिद से भर लिया, कभी कहीं दूसरी जगह से भर लिया, गुजारा करने वाली बात है। जिनके यहाँ बोरिंग हुई भी है उनको तो कोई परेशानी नहीं है, और जिनके यहाँ बोरिंग नहीं है वो बेचारे या नौकरी कर लें या घर का पानी भर लें। और दूसरा मसला ये है कि जो लाइनों में पानी आता है उसमें भी सुंडियाँ आ रही होती हैं, गंदा पानी आ रहा होता है सीवरेज का। तो इसके लिए मेहरबानी करके गवर्नमेंट देखे या जो भी मामला आते हैं, जो चेयरमैन साहब हैं वो इस इलाके को देखें। बड़ी अच्छा, ये बताइएगा कितना नुकसान होता है अगर गंदा पानी पी लेते हैं तो उसके बाद जो है वो आप बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, हम देखते हैं। तो आप लोगों को इससे कितनी परेशानी है, कितना नुकसान हो रहा है? हमें ये परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे बच्चे भी मारे जाते हैं। और आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चे वैसे भी बीमार होते हैं, इससे ज़रा ज़्यादा बीमार होते हैं। तो आपको पता महंगाई है तो दवाई ले लें या घर चला लें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ लियाकताबाद FC एरिया के जो है वो इलाका मकीन मौजूद थे और इनका यही कहना है कि गंदा पानी जो है वो लाइनों में आ रहा है, जिसके बायस जो है वो बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। महंगाई के इस दौर में फिर इन्हें दवाएं भी ख़रीदनी पड़ती हैं, साथ ही साथ जो है वो पानी का इस्तेमाल भी जो है पानी के इस्तेमाल के लिए भी जो है वो दूसरे ज़राए ने इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसके बायस जो है वो गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। जी, शहर कायद में मिलावट माफिया का राज है। गैर मियारी और मिलावट ज़दा दूध की सप्लाई जारी है। सिंध फूड अथॉरिटी और दीगर इदारे बेबस हो चुके हैं। शहर में आपको बताएं कि होलसेलर्स की सप्लाई पर कोई चेक पॉइंट कायम नहीं किया जा सका। वजूहात क्या हैं बताएंगे, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि इस फुटेजेस में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो फार्मर्स हैं और साथ जो होलसेलर है वो कराची के शहरियों को गैर मियारी दूध की फराहमी जो है वो बिला तातुल जारी है, जिसके लिए सिंध फूड अथॉरिटी का कयाम तो किया गया। और सिंध फूड अथॉरिटी हम देखते हैं कि शहर में दीगर फूड चेन्स के ऊपर तो वो अपने छापे मारती है, लेकिन जो उनकी खास जो जिम्मेदारी थी कि जहाँ दूध की सप्लाई शहर भर में होनी थी वहाँ पे ऐसे चेक पॉइंट्स कायम किए जाएं जो आके ताकि जैसे कि दूध जब सप्लाई हो रहा हो और उसकी जो है चेक एंड बैलेंस किया जा सके, उसके मेयार को चेक किया जा सके। अब तक सिंध फूड अथॉरिटी ऐसे कोई इक़दाम लेने से जो है वो नहीं कर पाई है। उसकी क्या वजूहात है, ये सिंध गवर्नमेंट तो सोचने की बात है, जहां उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि शहरियों को जो है वो मेयारी अशिया फराहम की जाए, लेकिन उसमें भी वो जो है नहीं कर पा रही। उसकी क्या वजूहात है, उसके अंदर सिंध अथॉरिटी और साथ साथ जहां हम देखते हैं कि निगरान हुकूमत ने इतने इक़दाम किए, अब इस वक्त भी जो है शहर कायद के अंदर जहां हम देखते हैं कि 50 से 55 हज़ार लीटर की जो यौमिया खपत है, उसके अंदर किस तरीके से वो जो माफिया है अपने मुनाफे के खातिर जो है वो पानी भी मिलाती है। और साथ साथ जो गैर मियारी जिस तरह दूध के अंदर मक्खियां वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती हैं, जितना दूध के ऊपर मक्खियों का वो अंबार नजर आ रहा है, उसके अंदर कोई मेयार मौजूद नहीं है। बच्चे बुजुर्ग सब जो है वो दूध का हर किसी की एक बेसिक नेसेसिटी के अंदर ये आता है, लेकिन इसको पूछने वाला कोई नहीं है। माफिया बेलगाम है, उसके अंदर दूध के अंदर पानी मिलाया जा रहा है या पानी में दूध मौजूद है, ये तक कोई मेयार जांचने का कोई तरीक़ेकार यहाँ कोई मेयार जांचने का तरीक़ेकार नहीं रखा गया है। अयाज राना हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल वहीद गदी, तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, फुटेज सामने आई है गैर मियारी दूध जो है मिलावट शुदा जिसमें पानी मिलाया जा रहा है, ये फुटेज सामने आई है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर मैं ये कहूँगा कि एक इदारा मौजूद है सिंध फूड अथॉरिटी, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस शोबे में भी काली भेड़ें मौजूद हैं उनके खिलाफ बेदरे कार्रवाई करे, जो कि होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, इस पे कंट्रोल किस तरह से पाया जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पानी है वो भी ठीक नहीं है, पानी में क्लोरीन का भी मसला काफ़ी हमने देखा कि आ रहा है और डायरेक्ट पानी मिलाया जा रहा है, तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इसको कंट्रोल करने का आसान तरीका है कि जो सिंध फूड अथॉरिटी ने जो कमिटमेंट की थी कि कराची के इंट्रेंस जितने भी हैं उस पर चेक पोस्ट कायम की जाएगी, जो कि अभी तक नहीं की गई। ये अपनी जिम्मेदारी निभाएं, चेक पोस्टें बनाएं
उस चेक पोस्ट से दूध क्लियर करके शहर में भेजें। उसके बाद अगर ये मामला आता है तो उसकी वो जिम्मेदारी रिटेलर्स पर आयद होती है। अच्छा सर, मिलावट करना और केमिकल मिक्स करके दूध की मिकदार को बढ़ाकर बेचना, आपको क्या लगता है इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? देखिए, हर शोबे में मैंने जैसे आप की कि काली भेड़ें मौजूद होती हैं। नाजायज मुनाफाखोरी के लिए हर आदमी किसी हद तक भी जा सकता है। सही है। अब्दुल वहीद गदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, हम देख रहे हैं फुटेज सामने आ रही है, अब तक कोई कार्रवाई इनके खिलाफ कोई शुरू की गई है? क्या कहना है, क्या ये पकड़ में आ सके हैं जो कि ये मिलावट कर रहे हैं दूध में? देखिए, फुटेजेस के अंदर वाज़े तौर पे देखा जा सकता है, धड़ल्ले से जो है वो डब्बों के ऊपर दूध की जो ढक्कन है वो हटा के उनके ऊपर खड़े होके वो दूध की म्यार जो है एक ड्रम को भरा जा रहा है। और जब वो उस दूध की जो चोरी की जा रही है, साथ साथ जो सप्लाई हो रही है, उस ड्रम को भरने के बाद वो नंगे पैर उस दूध के ढक्कने हटा के और उसके ऊपर खड़ा हुआ है। ये इनकी इसी देखें कि लोग ये तक नहीं सोच रहे कि ये दूध लोगों के घरों में जाना है, उसको बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी पीते हैं। हर घर की ये जरूरत है, चाय में इस्तेमाल होना है, लेकिन उनको किसी खौफ, उनको ना अल्लाह का डर है ना किसी इदारे का डर है, और वो बेखौफ और खतर ये काम कर रहे हैं। साथ साथ वो ये भी कर रहे हैं कि उसके साथ साथ जहाँ उसकी मिकदार को पूरा करने के लिए किसी से बिला खौफ और वीडियो बन रही है, उसको ये बात पता होने के बावजूद वो आदमी डरता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बात वाजे है कि ये इदारों से डरते नहीं है। जो ये माफिया है वो बेलगाम है, वो उनको किसी चीज का खौफ नहीं, वो यही समझते हैं अगर किसी इदारे ने कोई कार्रवाई करी भी तो 5, 10, 15 हजार रुपए का उनको चालान हो जाएगा। उसके बाद वो दोबारा अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 2 से 5 हफ्ते वो अंदर होंगे। उसके बाद दोबारा बाहर आने के बाद यही सिलसिला शहर भर में जो है वो जारी रहेगा। आज तक कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इसके ऊपर काम कर सके। सिंध फूड अथॉरिटी, हमने देखा है एक इदारा कायम किया गया जिससे उम्मीदें की जा सकती हैं। अगर हम बात करें इसी तरीके से पंजाब फूड अथॉरिटी जिस तरीके से दूध को लेके काम करती है, बड़े पूरी गाड़ियों के दूध को तल्ख कर दिया जाता है जब वो गैर मेयारी पाया जाता है। लेकिन आज तक हमने नहीं देखा कि सिंध फूड अथॉरिटी ने ऐसा कोई चेक पोस्ट बनाई हो जो सब शहर के अंदर हो। चाहे वो आप बात करें भैंस कॉलोनी की बात कर लें, चाहे आप गडाफ टाउन से लेके बात करें सुपर हाईवे पे, कोई ऐसी फूड अथॉरिटी की कोई चेक पोस्ट मौजूद नहीं है जहां से ये गैर मेयारी अशिया जब शहर में आती हो उसको चेक किया जा सके। सिंध हुकूमत की जानिब से दावे बड़े बड़े किए गए पिछले दिनों हो चाहे इस वक्त भी, अगर निगरान हुकूमत मौजूद है, दावे बहुत बड़े बड़े किए गए लेकिन काम जो है वो दिखा नहीं है। हमें जो फुटेज सामने आई है उससे वाज़े हो रहा है कि कोई म्यार का चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अयाज राना, हमें अपडेट करे थे। इसके साथ साथ अब्दुल वहीद गदी, तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया है। SSGC का CNG स्टेशंस को गैस की बंदिश का फैसला है। आज सुबह 8 बजे से CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी गई है। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, हर गुजरते के साथ कराची में गैस बहरान जो है वो अख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से SSGC ने फैसला किया है कि आज सुबह 8 बजे से जो है वो तमाम जो CNG स्टेशन हैं उनको गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। मजबूरी तौर पर 48 घंटों के लिए ये तमाम CNG स्टेशन जो है वो बंद रहेंगे, RLNG स्टेशन बंद रहेंगे और इसके साथ साथ पीर की सुबह 8 बजे तक ये तमाम CNG स्टेशन बंद रहेंगे। पीर की सुबह 8 बजे के बाद इन तमाम CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बहाल की जाएगी। मजबूरी तौर पर इस फैसले का मकसद ये है कि घरेलू सार्फिन को मौसम सरमा में बिला तासुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाना है, गैस की फराहमी करना है। तो इस तरह से गैस बहरान संगीन होने के पेश नज़र जो CNG सेक्टर है उसको गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। जी ठीक है वसीम इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेंजर्स और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इन एक्शन। पानी चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन दूसरे मरहले में दाखिल। ऑपरेशन न्यू कराची के इलाके गोधरा कॉलोनी सेक्टर 11E में किया गया है। बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान रेंजर्स और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का पानी चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। ऑपरेशन जो किया गया न्यू कराची के इलाके गोधरा कॉलोनी की सेक्टर 11E में किया गया, जहां गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए पीने का साफ पानी टैंकर के जरिए प्रयोग किए जा रहे थे। तर्जुमान रेंजर सिंह का कहना है कि कार्रवाई के दौरान एक गैर कानूनी कुएं के मस्पार करके 6 गैर कानूनी कनेक्शन जो है
काट दिए गए हैं, जबकि साथ ही साथ कराची में यौमिया 5 लाख गैलन पानी चोरी होता था, जिसके नतीजे में तकरीबन 4 करोड़ रुपए सालाना कौमी खजाने को नुकसान हो रहा था। कार्रवाई के दौरान 6 अदद पंप और भारी मिकदार में पाइप जब्त किए गए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 93 ऑपरेशन में 204 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 29 को मोहरबंद और 175 को मस्मार करके 165 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। पाकिस्तान रेंजर्स गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और मीठे पानी की चोरी के मुकम्मल खाते तक ऑपरेशन जारी रखेगी। ठीक है शाहजेब, साथ ही मौजूद रहिएगा।